Hello everyone. So this lecture is for 4th standard and your today's subject is science. Okay. So just remove page number 237 of your textbook. Page number 237. The name of the chapter is Plants Preparing and Storing Food. So your page number is mentioned here. यहाँ पे आपको page number दिया है. आप just look at the page number and go according to that. Page number 237 is your chapter, beginning of the chapter, Plants Preparing and Storing Food. So let's start our chapter, Plants Preparing and Storing Food. Now what we are going to study in this chapter, हम ये chapter में क्या पढ़ेंगे? We are going to study describe the parts of leaf. Learning objectives means in this chapter we are going to learn different description of the parts of the leaves. We know there are different parts of the trees. हमें पता है trees के अलग अलग parts है, but हम यहाँ क्या पढ़ने वाले? We are going to study the parts of leaf. हम leaves के part study करेंगे. Next, describe how green leaves produce food. हम और डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे कि ग्रीन लीव्स फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं. वी नो प्लांट्स प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. दे नीड सनलाइट, वाटर एंड सॉइल फॉर द ग्रोथ. प्लांट्स को क्या ज़रूरत है ग्रोथ होने के लिए? सनलाइट, वाटर एंड sand. In the same way, identify some of the unusual plants such as fungi and insectivorous plants. फिर हम इसमें different types of plant पढ़ेंगे, जैसे कि fungi है and insectivorous में the fungi which जैसे हम the fungi we called as algae, और insectivorous means जो plants insects खाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? We call it as insectivorous plants. Describe the interdependence between plants and animals. और हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि एनिमल्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट कैसे है. So how they are dependent on each other. First, unscrabble the letters to find the correct names of the plant these leaves belongs to. ओके अब हमें जो पिक्चर्स दिए गए, जो लीव्स दिए गए, उस वो जो नेम है उसको क्या किया हुआ है? अनस्क्रम्बल किया. मीन्स लाइक मिक्स करके लिखा है, और हमें इसे प्रॉपर वे में लिखना है कि विच प्लांट इज दिस, which leaf is this, which leaf is this. The first leaf is rose. Okay, so you will write here ROSE, rose. Okay, here ROSE, rose. The first leaf is rose. जो पहला लीफ हमें दिखाई दे रहा है वो कौन से प्लांट का है? रोज. नेक्स्ट इज ULTOS. इट इज लोटस. LOTUS, lotus. The third one is ANANAB. It is banana. BANANA, banana. Banana is famous for eating food in Kerala. Kerala के लोग people क्या करते हैं? They eat food on the leaves of banana. The next one is APAPAY. Papaya? No, it is papaya. PAPAY. Papaya. Okay. PAPAYA, papaya. The next leaf is AEELPP. Elp, it is people. PEPAPEPLA, people. And next is MANGO, mango. MANGO, mango. Okay, I will write it properly. PEEPAL, people. Okay, so these are the names of the
These are the names of the leaves. First one is rose, ROSE, rose. The second is lotus. The third one is BANANA, banana. Fourth one is papaya, PAPAYA, papaya. Next one, fifth one is people, PEEPAL, people, and MANGO, mango. These are the leaves of different parts of the plants. ये leaves अलग अलग part है plants के. Okay. Now next we will start with the chapter. That is page number 238, introduction. Okay. Page number 238, introduction. I'm zooming so that you can see the word where I am reading very properly. So first is page number 238 of your textbook. आप 238 page number remove करेंगे textbook का, and we will start with the chapter. Your green plants are one of the most diverse group of leaf form on earth. ग्रीन प्लांट्स हमारे अर्थ पे मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है, मीन्स बहुत अबंडेंट है. डाइवर्स मीन्स बहुत ज़्यादा है, एंड इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर अर्थ. दे आर full of green leaves. They are full of green leaves. Means plants है, मतलब leaves तो green होंगे, the complete plants will be green. So they are full of green leaves. Why are leaves green? क्यों leaves green क्यों है? Why are leaves green? The presence of a substance called chlorophyll makes a leaf appear green. Means क्यों प्लांट्स लीव्स ग्रीन दिखते हैं, क्यों प्लांट्स ग्रीन इन कलर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, क्योंकि एक सब्सटेंस प्रेजेंट है. द नेम ऑफ द सब्सटेंस इज क्लोरोफिल. सो यू हैव टू अंडरलाइन द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस called chlorophyll makes a leaf appear green. Okay, so the substance, किस वजह से प्लांट्स ग्रीन है हमारे? क्योंकि एक सब्सटेंस प्रेजेंट है. द नेम ऑफ द सब्सटेंस इज क्लोरोफिल, जो हमारी प्लांट्स को क्या करता है? इट मेक्स द प्लांट्स ग्रीन. क्लोरोफिल फर्दर हेल्प्स ग्रीन लीव्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स. क्लोरोफिल क्या हेल्प करता? और क्या हेल्प करता? क्लोरोफिल सिर्फ कलर नहीं देता लीव्स को, इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स को फूड बनाने में भी क्लोरोफिल हेल्प करता. देयरफॉर लीव्स are considered to be one of the main component of the plant. इसीलिए लीफ क्या कंसिडर किया जाता? लीफ को क्या बोला जाता? लीफ को ऐसा माना जाता है कि लीव्स प्लांट्स का सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. When we look around ourselves, we find different plants having different shapes, size and colors of leaf. हम जब अपने आसपास देखते हैं, हम अपने अराउंड देखते हैं, तो हमको क्या हम क्या देखते हैं? जब हम प्लांट्स को देखते हैं, हर प्लांट्स में अलग अलग तरीके के लीव्स होते हैं, अलग अलग तरीके का शेप होता है, एंड देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ द लीव्स. सिर्फ लीव्स ग्रीन कलर के नहीं है. वी कैन सी सम आर डार्क ग्रीन, सम आर लाइट ग्रीन, सम आर pink, reddish and greenish in shape. There are different plants which has different colors, different types and different size and different colors of leaf. मतलब हर एक प्लांट में अलग कलर रहता, डिफरेंट अलग अलग साइजेस रहते. सारे प्लांट्स के लीफ एक साइज के नहीं रहते, एंड डिफरेंट शेप्स रहते. बाय लुकिंग एट द लीव्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई मैनी ऑफ द प्लांट्स. जब हम लीव्स को देखते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से टाइप का प्लांट है, ये कौन से टाइप का लीव है. नीम, कोकोनट, पाइन, पीपल, गुलमोहर, क्रोटन. सो ये अलग अलग टाइप्स के लीव्स हैं जिसको हम देख के पहचान सकते हैं कि ये कौन से प्लांट से आए. ओके, अगर हम ऐसा लीव देखें, वी विल से कि ये नीम का प्लांट है, ये नीम का पत्ता है करके. देन वी कैन सी, हम कोकोनट ट्रीज देखते हैं तो उस पर से पता चलता है कि हाउ इज द कोकोनट लीव्स. देन वी कैन सी द पीपल.
people plant, we can see pine, then gulmohar, croton. Croton is the name of a plant. Okay, so अलग अलग प्लांट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लीव ये प्लांट का है, दिस लीव बिलोंग्स टू दिस प्लांट. So because of leaf we can identify plants. Parts of a leaf, different parts of leaf. If you see, this is your leaf, ये हमारा लीफ है, इसके डिफरेंट पार्ट्स है. वी कैन, अगर आपके पास आसपास कोई झाड़ है या घर पर कोई झाड़ है तो आप उसका लीफ लाकर देख सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स क्या है प्लांट के. सो लीफ ब्लेड और लेमिना. लीफ ब्लेड और लेमिना हम किसे बोलते हैं? द मेन इंटरनल पार्ट को हम क्या, ये जो प्लेन पार्ट दिख रहा है आपको, हम उसे क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड और लेमिना. ओके, नेक्स्ट इज अपेक्स. अपेक्स मीन्स टिप. अपेक्स का मतलब है टिप ऑफ लीफ को हम क्या बोलते हैं? अपेक्स. पेट्यूल. पेट्यूल मीन्स जहाँ से ब्रांच आ रहा है, लाइक लीफ ब्रांच को अटैच है, वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस पार्ट यू कैन सी, इट इज नोन एज पेट्यूल. नेक्स्ट, मिड रिब और मेन वेन. मिड रिब और मेन वेन मीन्स दिस वन. ये मिड रिब मीन्स जो बीच मिडल लाइन दिख रही है आपको, उसको हम बोलते हैं मिड रिब और मेन वेन. देन साइड वेन. साइड वेन्स मीन्स ये छोटे छोटे ब्रांचेस दिख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज साइड वेन्स. ओके, so these are the parts of leaf. Leaf blade or lamina, apex, petiole. Okay, leaf blade or lamina, apex, this one, petiole, the part which connects, जो लीफ का पार्ट जो ब्रांच को कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पेटियोल. देन वी कॉल इट एज मिड रिब और मेन वेन, leaf blade or lamina, side veins and apex. These are different parts of the leaf. These are the different parts of the leaf. Okay, now we will see the next one, that is just underline the things which I am underlining. आपको पेंसिल से वो चीज़ें अंडरलाइन करना है जो मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए कहूँगी. दिस रेड मार्क, जस्ट फॉलो दिस रेड मार्क. आप ये रेड मार्क को फॉलो करेंगे. नेक्स्ट यू हैव टू अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द लीफ. लीफ ब्लेड, अपेक्स, पेट्यूल, मिड रिब और मेन वेन एंड साइड वेन्स. नेक्स्ट वी विल गो टू द observation. Next it is in the next page number 239. Okay, observe the leaves. Observe the leaf of a peepal tree or a banyan tree closely. मतलब वो क्या बोला कि हमको क्या ऑब्जर्व करना है? पीपल ट्री और या फिर बैनियन ट्री को एकदम पास से, एकदम क्लोजली क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. We can clearly see the above mentioned parts of a leaf. हम जब लीफ को एकदम नज़दीक से देखें, एकदम पास से देखते हैं, एकदम क्लोजली देखें, तो हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि लीफ में क्या क्या प्रेजेंट है, लीफ के पार्ट्स क्या क्या है, लाइक लीफ ब्लेड और लैमिना, अपेक्स, पेट्यूल, मिड रिब, साइड वेन्स, ये सब हमें दिखाई देंगे. The flat part of the leaf is called the leaf blade or lamina. ये part को हम क्या बोलेंगे? The flat part is known as leaf blade or lamina. The tip of the leaf is called the apex. ये जो tip है leaf की, उसको हम क्या बोलते हैं? We call it as apex. The stalk that connects a leaf to the stem or a part is called the petiole. पेट्यूल किसे बोला जाता है? ये पार्ट जो लीफ को और स्टेम को क्या करता है? कनेक्ट करता है, इज नोन एज पेट्यूल. रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड मिड रिब और मेन वेन. दिस पार्ट इज नोन एज मिड रिब और मेन वेन. जहाँ मेरा एरो है हम इसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मिड रिब और मेन वेन. ईच लीव्स हैज वन मिड रिब एंड मेनी साइड वेन्स. हर एक लीफ के पास एक बड़ी मोटी सी मिड रिब रहती एंड अदर जो पार्ट साइड वेन्स रहते हैं, और साइड सिर्फ एक मिड रिब रहेंगी और बहुत सारे साइड वेन्स रहेंगे.
वेन्स परफॉर्म द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। वेन्स क्या करते हैं, वो फंक्शन क्या है वेन्स का, वो मिनरल्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मीन्स वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसफर करते हैं। Transportation of minerals, waters and prepared food to and from the leaves। और क्या करते हैं, what they do, they help in preparation of food। ओके जो लीव्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फूड के प्रिपरेशन में। द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ contain numerous bean-shaped tiny pores that cannot be seen with the naked eyes। अब ये लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये एकदम छोटे छोटे टाइनी पोर्स, दे आर कॉल्ड स्टोमाटा। ये पोर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस पोर्स आर नोन एज स्टोमाटा। ये लीव्स के ऊपर एकदम छोटे छोटे, जो हम नेकेड आई से हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, तो इट इज नोन एज स्टोमाटा। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के थ्रू इसे देख सकते हैं। सिंगुलर स्टोमा, अगर एक रहे तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टोमा, और बहुत सारे रहेंगे तो स्टोमाटा। The stomata control gaseous exchange of carbon dioxide and oxygen in the leaf। तो स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, जैसे हमारे नोज और हमारे लंग्स है जो हमको ऑक्सीजन और ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, उसी तरह स्टोमाटा प्लांट्स को ब्रीदिंग में हेल्प करता है। व्हाट डज प्लांट ब्रीथ इन, प्लांट्स क्या ब्रीथ इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन। सो इट इज बाय विद द हेल्प ऑफ दीज टाइनी पोर्स। वो किसके थ्रू होता है, ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट, एंड देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू। टेक अ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट लेना है आपको। अप्लाई अ थिक लेयर ऑफ वैसलीन और मोल्टेड कैंडल वैक्स on the upper side of a few leaves of the potted plant। आपने जो potted plant ली है उसके कुछ leaves को क्या करना है, वैसलीन लगाना है या फिर कैंडल का वैक्स लगाना है। cover them with polythene bag, वो leaves को क्या करना है, पॉलीथीन बैग से कवर करना है। now apply a thick layer of vaseline or molted wax on the lower side of few other leaves of the same potted plants। मतलब कुछ लीव्स के ऊपर लगाना है एंड कुछ लीव्स के नीचे लगाना है वैसलीन या वैक्स। ऑब्जर्व द लीव्स फॉर ट्वाइस इन अ डे फॉर अ वीक। व्हाट डिफरेंस डू यू सी, व्हाई, मेंशन योर रिकॉर्ड इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, आपको जब आप ये प्लांट पॉट करेंगे, प्लांट आपके पास आप एक प्लांट लेंगे, उसके कुछ लीव्स के ऊपर आप वैसलीन लगाएंगे और उसको एक पॉलीथीन बैग से टाई कर देंगे, और एक दूसरा साइड लेंगे जहाँ पे आप उस लीव्स के नीचे लगाएंगे और उसको भी पॉलीथीन बैग से टाई कर देंगे। और 2 दिन के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे हर 2-2 दिन को कि क्या चेंजेस हो रहा, और ऐसा आप पूरे वीक में उसका रिकॉर्ड रखिए कि क्या लीव्स में चेंजेस हो रहे। ओके, सो दिस यू हैव टू डू एट होम, ये आपको घर पर करना है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अ लीफ। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ अ लीफ। जो नीचे दिए गए पॉइंट्स, ये है लीव्स के मेन फंक्शंस, मतलब लीव्स क्यों हेल्पफुल है, क्या क्या प्लांट्स के लिए करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द लीफ, एंड लीव्स का इम्पोर्टेंस क्या है एज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। लीव्स, it prepares food for the plant by a process known as photosynthesis। लीफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो क्या करता, प्लांट्स के लिए फूड बनाता, और वो प्रोसेस को हम क्या बोलते, वी कॉल इट एज फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ प्लांट्स किचन। फूड को, लीफ को क्या बोला जाता है, प्लांट का किचन, और द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, या फिर प्लांट्स का किचन कहते हैं या फिर प्लांट्स की फूड फैक्ट्री। वाई, बिकॉज वहाँ पे क्या बनता है, प्लांट का खाना बनता है। इट इज नोन एज फूड प्लांट किचन और फूड फैक्ट्री। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ साइट वेयर ट्रांसपायरेशन ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस। ये एक ऐसी साइड है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर का क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, मतलब वाटर्स वेपर में ट्रांसफ़र होता है, एंड वाटर्स का जो
लीव्स पे डिपॉजिट हो जाते वो वाटर क्या होते हैं, ट्रांसपायरेशन होता, मीन्स ट्रांसफर इनटू गैसेस, उनका ट्रांसफर होता. इट हेल्प्स अ प्लांट टू परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा. लीव्स क्या हेल्प करता, गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इन लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, लीव. द एयर दैट प्लांट्स ब्रीथ इन इज कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स क्या ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. वेयर एज द एयर दैट प्लांट्स रिलीज इज ऑक्सीजन. वो क्या छोड़ते, दे गिव आउट ऑक्सीजन. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ लीव्स. Okay, now just underline the parts which I am underlining. आप वो चीज़ें underline करो जो मैं red pen से underline कर रही हूँ. Okay, take a pencil in your hand and underline each and every point which I am underlining. आप pencil use करेंगे, जो भी मैं underline कर रही हूँ आप screen पर देख सकते हो, वो आपकी textbook में आप pencil से underline करेंगे. Okay. Sorry. Next, you will write functions of leaf. All the functions of the leaf you will underline. No need of underlining, सिर्फ आप tick mark भी कर सकते हैं. Okay. Now next we will go to page number 230 240. That is how do plants make food. अब हम page number 240 देखें. How do plants make food. Plants need 3 basic things. Plants को क्या चाहिए, 3 basic things चाहिए, such as carbon dioxide, water and sunlight to make food. Plants को क्या होना food बनाने के लिए, सिर्फ carbon dioxide, water and sunlight. ये 3 बहुत important चीज़ें जो plants को ज़रूरी है. They take in carbon dioxide from air through stomata and water from soil. Plants air कहाँ से लेते हैं, leaves के through, stomata because leaves में क्या present है, stomata. और water कहाँ से लेते हैं, they take water from the soil. The leaves of a green plant contain a green colored substance called chlorophyll. जो लीव्स है, जो प्लांट्स ग्रीन रहते हैं, वो प्लांट्स के लीव्स में क्या प्रेजेंट रहता, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल is present in the leaves of the green plant. The presence of chlorophyll helps green leaves to trap sunlight. अगर लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तो वो क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, पकड़ेगा. Green leaves use the sunlight to prepare food from water and carbon dioxide. Okay, and water. अब ये जो green leaves sunlight, अब sunlight क्लोरोफिल ने क्या किया, green leaf को पकड़ लिया, ट्रैप कर लिया. Then सॉइल में से वाटर और कार्बन, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें मिल गई. सो जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती देन देयर इज अ मीन्स तब प्लांट का फूड बनना स्टार्ट हो जाता. सिंस दिस एंटायर प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये जो पूरा प्रोसेस है खाना बनाने का, मेकिंग ऑफ फूड, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब सनलाइट रहेंगी तभी ये फूड प्रिपेयर हो सकता. सो इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इसीलिए इसको बोला जाता फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, मतलब तीनों चीज़ें मिल जाती तभी प्रोडक्ट बनता. एंड फोटो मीन्स द लाइट, सो इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. Oxygen is produced on as a byproduct of photosynthesis. ऑक्सीजन क्या है, एक वेस्ट है, एक बाय प्रोडक्ट है. ओके, एक रिमेनिंग प्रोडक्ट है. अब जब हम ऑक्सीजन
ब्रीथ करते तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ सकते हैं। जब तक हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाएंगे क्या? नो। इन द सेम वे प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इनहेल करता तभी वो ऑक्सीजन को एक्सेल करता, मीन्स बाहर छोड़ता। सो ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. We humans and other animals use this byproduct to breathe and stay alive. हम humans और जो दूसरे animals हैं, हम ये बाय प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं? हम इससे ब्रीथ करते हैं और हम क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight give glucose plus food. Glucose means आपका food, means maybe fruit, vegetables, whatever may be the form, plus oxygen. Even इसमें flowers भी आते हैं. Okay, this is the process how plants make their food. Okay, now again just underline the words. The leaves of a green plant contain a green colored substance called chlorophyll. The presence of chlorophyll helps green leaves to trap sunlight. Oxygen is produced as byproduct of photosynthesis. We humans and other animals use this byproduct to breathe and stay alive. You will draw this diagram in your homework. Okay. In homework 2 times. Next, leaves of croton. Leaves of croton appears red in color because they have a colored substance called carotenoid that dominates the presence of the green chlorophyll. Now you can see this picture croton plant. हम croton plant की picture हमारे books में देख सकते हैं. We can even see on the slide. तो croton जो leaves है उसकी leaves का color क्या है? It's red in color. It is red in color because उसमें कौन सा substance dominate है, ज़्यादा present है? The name of the substance is कैरोटीनॉइड. कैरोटीनॉइड के वजह से ये जो क्रोटॉन प्लांट है वो हमें कैसे दिखाई देता है? इट इज उसके लीव्स कैसे दिखाई देते हैं? रेड इन कलर. ओके, नाउ यू विल राइट दिस ऑल्सो. ओके, इन द होमवर्क यू विल draw a well labeled diagram of the leaf in page number 238. जो आपके पेज नंबर 238 पे लीफ का डायग्राम दिया आप वो करेंगे 2 times. You will learn and write underline definition. मैंने जो भी आपको वीडियो में अंडरलाइन करके definitions दी हूँ आप वो भी 2 times सीखेंगे. Learn and write function of leaf. Functions of leaf, page number 239 of your textbook. Okay, आप पेज नंबर 239 पे आपके functions of leaf है, आप वो 3 times सीखेंगे. Learn and write about croton plants on page number 240. जो ग्रीन बॉक्स में आपको क्रोटॉन प्लांट के बारे में बताया, इंफॉर्मेशन दी है, अब वो भी you will learn it and write 2 times. Okay, so and you will draw the diagram. Yes, of course, this diagram also in the homework notebook. Okay, so we will stop our today's lecture here and we will continue from page number 241 in the next lecture. लेकिन ये लेक्चर स्टॉप करने मतलब नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप ये लेक्चर कम्प्लीटली अच्छे से रीड करेंगे. यू विल रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन. आप ये चैप्टर बार बार रीड करेंगे एंड देन you will see the next page. Okay, thank you and see you in the next lecture.